morning, students. Today we are going to start the subject values, and the first chapter is two friends. This is the first part of the video. So let's start with reading. Akshay was studying in class 9th and used to actively participate in extracurricular activities like sports, theatre, along with studies. So this is the story of two friends, and the first one is Akshay, who was a student of class 9 and along with his studies अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स, थिएटर मीन्स प्लेज में परफॉर्म करता था. डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, ही वॉज नॉट हैप्पी, ऑलवेज रिमेन्ड डिसकंटेंट about most of the things in life and used to complain often. Here discontent means dissatisfied, मतलब वो संतुष्ट नहीं था. इसके बावजूद, अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स के बावजूद अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं था और हमेशा कंप्लेन करता रहता था. He used to find some or other flaw in his situation and in most of his friends. Flaw means mistake. तो वो हमेशा अपने सिचुएशन की या अपने दोस्तों की मिस्टेक्स निकालता रहता था. Although he was doing well in the eyes of his friends and teachers, he always felt that he could not get what he wanted or what he deserved. So he was doing very good in the eyes of his teacher or friends, but वो हमेशा ये सोचता था कि वो जो डिज़र्व करता है वो उसे नहीं मिल पा रहा. Because of this habit, some of his friends started ignoring him. और इसी हैबिट की वजह से उसके बहुत सारे दोस्त उसे इग्नोर करना, उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिए. एंड some started away from him completely. और कुछ दोस्त तो बिल्कुल ही उससे अलग रहने लगे, क्योंकि उन दोस्तों को अक्षय का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो हमेशा गलतियाँ निकालता रहता था. This made him even more unhappy and angry. और इसकी वजह से अक्षय पहले से भी ज़्यादा अनहैप्पी और गुस्सा आने लगा उसे. When the next session of class 10th started, then some new students from other cities took admission in the school. तो जैसे कि आपको पता है, न्यू सेशन जब नया साल शुरू होता है तो वो 10th क्लास में चला गया, तो अलग अलग स्कूल से, अलग अलग सिटीज़ से कुछ न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उसके स्कूल में. Shrey was one of them. His father had moved from Delhi. So, a new student whose name was Shrey, he took admission in Akshay's class. He soon became a good friend of Akshay. Shrey's forever happy and smiling attitude towards life really amused Akshay. Amused means to hold the attention. मीन्स आकर्षित करने लगा. श्रेय का जो हमेशा खुश रहना और स्माइलिंग जो एटीट्यूड बिहेवियर था उससे अक्षय बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है. श्रेय नेवर कंप्लेन्ड एंड एन्जॉयड एवरी मोमेंट स्पेंट इन द क्लास. एंड श्रेय नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एनीथिंग एंड ही यूज्ड टू एन्जॉय एवरी मोमेंट, इवन whether it is class or free period, and he used to have a very good time. Akshay started to think, can he learn something from Shrey so that he may also stay happy? तो जब अक्षय ने देखा कि श्रेय हमेशा खुश रहता है, हमेशा सब चीज़ें इंजॉय करता है, तो वो सोचने लगा कि क्या मुझे श्रेय से कुछ सीखना चाहिए ताकि वो भी हमेशा हमेशा खुश रह सके, बिल्कुल श्रेय की तरह. One day he asked Shrey. Who asked Shrey? Akshay asked Shrey. What was the secret behind his happiness? कि उसकी इस happiness, इस खुशी के पीछे का राज क्या है? Shrey smiled and said, Akshay, my friend, to tell you the truth, there is no single mantra of happiness. Rather, there are lots of them. तो उस पर श्रेय कहता है कि अक्षय मेरे दोस्त, अगर सच बात बताऊं तो कोई एक सिंगल मंत्र नहीं है इस खुशी का, बहुत सारे हैं. Both were sitting in a garden as the evening was falling down upon them. Akshay asked, can you tell me some of them so that I can also be like you? So, they both, Akshay and Shrey, were sitting in a garden in the evening. Then Akshay asked Shrey कि क्या तुम मुझे बताओगे उनमें से कुछ ताकि मैं भी तुम्हारी तरह खुश रह सकूं?
Shrey promptly replied. Promptly means immediately. Shrey ने फौरन जवाब दिया. The first mantra, you should always count on blessings. तो श्रेय ने क्या बोला अक्षय को कि सबसे पहला मंत्र जो है कि जो भी तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, जो भी तुम्हें आशीर्वाद, जो भी तुम्हें फैसिलिटीज़, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सबसे पहले उसे काउंट करो. Which means appreciate what you have and do not pay attention to what you don't. Appreciate means प्रशंसा करना. तो श्रेय से बोलता है कि जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं पहले उसको अप्रिशिएट करो और उन चीज़ों पे ध्यान ना दो जो तुम्हारे पास नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर कैपेबल ऑफ गोइंग टू अ गुड स्कूल. वी गेट गुड फूड टू ईट, बुक्स टू रीड, good clothes to wear, computers, phones, etc. So उसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया that we are very fortunate means lucky. We are very lucky that we are able of going to a good school. We get good food to eat, books to read, good clothes for wearing. We have computers, phones, and many more things. While there are millions of people in the world who do not even have access to the basic necessities like clean drinking water, electricity, proper square meals a day. और फिर श्रेय ने बताया कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि साफ़ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है उनके पास और ढंग का 2 वक्त का खाना भी नहीं होता है. तो जो चीज़ें हमारे पास है, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास है, हमें पहले उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि हम अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, बुक्स से पढ़ने को, अच्छे कपड़े हैं, कंप्यूटर है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें क्या, उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, खाना, वो तक नहीं होता. थिंक ऑफ द boons इन योर लाइफ लाइक दिस एंड बी थैंकफुल. boons मीन्स बेनिफिट्स. तो जो भी boons है तुम्हारी लाइफ में उसके बारे में सोचो और थैंकफुल रहो, शुक्रगुजार हो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. The second mantra he shared was to live in the present. And what was the second mantra? Live in the present. आज के वक्त में जीना. Enjoy every moment and do not worry about what has happened in the past or what will happen in the future. And he said that enjoy every moment of your life and need not to worry what happened in the past or what will happen in the future. Live in the present and enjoy the present moment. Just like we are sitting under this tree in the garden and the cold wind is blowing. एग्जाम्पल में क्या बोलता है श्रेय कि जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं इस गार्डन में और ठंडी हवा बह रही है. Come, enjoy it. Shri continued to say, suppose we went to a very beautiful scenic for a picnic. But as it happens, usually most of us get busy taking a selfie or taking photos instead of spending time to enjoy nature and scenic beauty of the picnic spot. While probably many will not even see those photos later. तो श्रेय एक एग्जांपल देता है कि सपोज़ करो कि हम लोग किसी सीनिक, किसी ब्यूटीफुल प्लेस पे पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम लोग वहाँ जाके सेल्फ़ी लेना, फ़ोटो लेना, इन सब चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं, ना कि उस ब्यूटी को इन्जॉय करते हैं. वो जो पिकनिक स्पॉट होता है उसको इन्जॉय करने के बजाय हम लोग पिक्चर्स लेने में बिज़ी हो जाते हैं. While probably many will not even see those photo later. और जबकि उन फ़ोटोज़ को बाद में शायद ही कोई देखता होगा. कोई भी घूमने जाता है तो फ़ोटो लेना शुरू कर देते, सेल्फी लेना, लेकिन बाद में एक बार देखा फिर शायद दोबारा उस फ़ोटो को बोला कभी देखते भी नहीं होंगे. तो उन फ़ोटोज़ क्लिक करने के बजाय वहाँ की जो ब्यूटी है उसे एंजॉय करना चाहिए. अक्षय वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद श्रेय and expressed his desire to learn more. तो इन सारी बातों से अक्षय बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो चाहता है कि वो और सीखे श्रेय से. श्रेय then gave an example of small kids who are always happy and smiling because they are unaware of any fear of the world around them. Unaware means not knowing. Then Shreya gave an example of a little kids who are always happy and smiling. और छोटे बच्चे हमेशा हैप्पी और स्माइलिंग क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें
बाहर के दुनिया के डर या बुरी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो अपने जो उनकी समझ होती है उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं और वो हमेशा हैप्पी और खुश रहते हैं। एंड यू नो अक्षय, आई हैव नोटिस दैट यू ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन अदर्स फॉल्ट मीन्स मिस्टेक। तो श्रेय ने कहा कि और मुझे पता है अक्षय कि तू हमेशा गलतियाँ निकालते रहते हो। व्हाट डू यू थिंक यू एंड आई आर द बेस्ट? क्या तुम ये सोचते हो कि तुम और मैं सबसे बेस्ट है? नो, वी ऑल्सो हैव मेनी सच हैबिट्स एंड अस दैट अदर्स डू नॉट लाइक। हमारे अंदर भी कुछ हैबिट्स हैं जो दूसरों को पसंद नहीं है। स्टिल आवर फ्रेंड्स इग्नोर ऑल दोज फ्लॉज। इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन सारे मिस्टेक्स को अनदेखा करते हैं एंड रिमेन गुड विथ अस। सो लर्न टू टॉलरेट अदर्स एंड इग्नोर देयर शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स मीन्स मिस्टेक्स। सो श्रेय टेल हिम टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना दूसरों को और उनकी मिस्टेक्स को भी इग्नोर करना। Okay children, we will read the remaining portion in the next video. Thank you.